کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس نے پوری کرنا ہوتی ہیں. دو باتیں ضروری ہیں جو آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے اور پھر اعلان کرنا ہے. خطیب غلہ منڈی جناب مفتی حنیف باروی صاحب، ان کا خطاب تھا، وہ سفری مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ پر انتہائی محترم، انتہائی مکرم، انتہائی قابل عزت اور میرے لیے صد احترام کے قابل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمشاد رضوی صاحب آپ کو بھیجا ہے. آپ ہمارے لیے قبلہ ویسے ہی مہمان ہیں جیسے وہ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور انشاءاللہ ان کے متصل بعد میں قبلہ حضرت علامہ قاری زوار قادری اتاری صاحب انشاءاللہ ان کا بھی خطاب سنیں گے. لیکن اب میں اپنی نقابت چھوڑتے ہوئے بلا تاخیر اعلانات کرتا ہوں تاکہ جتنے مہمان ہیں ہم انہیں عزت سے سماعت کر سکیں. تشریف لاتے ہیں انتہائی محترم مقام، عزت مآب، بابا صحافت، آپ سب جانتے ہیں. اور ماشاءاللہ حسین کے ذکر میں بولنے والے. میں ایک شعر حسین کی ذات کا پڑھتے ہوئے انہیں صدا دیتا ہوں کہ اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے، پشت نبی پہ سوار حسین ابن علی ہے، جنت کا طرفدار حسین ابن علی ہے. پوچھو یزیدیوں سے کہ جائیں گے کدھر، آپ پوچھو یزیدیوں سے کہ جائیں گے کدھر، ارے جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اور پروانہ جنت لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہیں. آئیے آل محمد کے ایک وفادار اور حبدار کو آپ سے مخاطب ہونے کے لیے بلاتا ہوں. بلا تاخیر دعوت خطاب اور دعوت اظہار خیال دیتا ہوں بابا صحافت ہمارے انتہائی محترم مکرم ذوالفقار علی قائم خانی صاحب، وہ انشاءاللہ اپنا آواز فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شروع کرنے سے پہلے استضاء کروں گا کہ یہ بچے بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو یہ بچے ادھر آ جائیں، تمام بچے آ جائیں. اور جو یہ بزرگ ہیں تمام لوگ، تمام احباب تھوڑا تھوڑا کے تشریف دیں، جگہ بہت خالی ہے. بچے تمام چلے جائیں ادھر سے، ادھر سائڈ پہ چلے جائیں. چلو بڑے آدمی سب پیچھے بیٹھے، آپ آگے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جس مقصد کو لے کر گھر سے مسجد تک اس جلسہ کا تکا پائے، اگر وہ مقصد ہی حاصل نہ کیا تو پھر آپ کا یہاں پر آنا. تو میں اپنی بات کا آغاز ایک نعرہ سے کروں گا. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر. پیچھے دوست جو ہیں پتہ نہیں نعرے سے ناراض ہیں، تو ایک نکڑ سے لے کر دوسری نکڑ تک صدا آنی چاہیے، پتہ لگے، اہل محلہ کو بھی پتہ لگے کہ آج یہاں حضور کا جشن منایا جا رہا ہے، جشن آمد رسول کی محفل ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہاں پر شروع سے لے کر آخر تک ذکر حسین اور ذکر علی چل رہا ہے. میں اپنی بات کا آغاز بھی ذکر حسین سے کر کے اور چند جملوں میں آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کس نے بلایا ہے، تو اپنی بات کو ختم کروں گا. میں نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ میں 10 بجے سے زیادہ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا. کہتا ہے کون، کہتا ہے کون ختم ہو گئی کربلا کی جنگ، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں لشکر یزید سے، نسل یزید سے. یزید بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی. ہر غاصب، ہر ظالم، ہر آمر یزید ہوتا ہے. حسین، حسین، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. کملی والا کندھوں پر بٹھاتا ہے، پھر حسین میدان کربلا سجاتا ہے. پل بھر کی حکومت تھی
परचम लहरा रहा है हुसैन का, हुसैन का, हुसैन का। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बैठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिसके लाशे पे घोड़ा दुड़ाया गया, जिसकी मस्तूरात के खैमों को जलाया गया, सर सजदा में रखकर नोश कर लिया, जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्न हैदर पे। लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। मिलाद की तरफ आता हूं। खुश किस्मत इंसान है, ये रहमतों की रात है, नूर की बरसात है, महफिल मिलाद मुस्तफा का इनेकाद है। और आप आज यहाँ पर आए बैठे हैं, आपको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। खुश किस्मती है कि आप इस महफिल में आए हैं, और इस महफिल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये मेरा वजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा कुरान कहता है, मेरा रब रहमान कहता है कि इस महफिल को ताजदार मदीना खुद समात कर रहे हैं और देख रहे हैं। अब कोई फेसबुकी मुल्ला दानश्वर ये कहे कि तुम कहते हो तो कहते रहो, लेकिन कुरान में कहां पे लिखा है, रब रहमान ने कहां पर कहा है कि मिलाद मुस्तफा की महफिल को, जिक्र हुसैन को, जिक्र अहले बैत को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। तो आओ कुरान पाक उठाओ, लेकिन मुसीबत तो ये है कि हमने कुरान की तालीमात को भुला दिया है, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। कुरान की जगह अब हमारे इन मोबाइलों ने ले ली है। हम मोबाइलों के लेक्चर, बेहुदा प्रोग्रामों को बड़ा ज़ौक़ और शौक से देखते हैं। कुरान पाक को घर की अलमारियों में हमने रख दिया है। कुरान पाक उठाओ, 30वां पारा खोलो, अलम तारा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, क्या तूने नहीं देखा कि हमने हाथियों वालों के साथ क्या किया? ये जब इब्राहिम के लश्कर ने, हाथियों के लश्कर ने बैतुल्लाह पर लश्कर कशी की थी, ये उस वक्त की बात है। और जब ये वक़ूआ हुआ था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्म मादर में थे, अभी उनकी दुनिया में आमद नहीं हुई थी। इस वक़ूआ के 55 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ लाए। मेरा नबी, आपका नबी शिक्म मादर में, माँ के पेट में बैठकर काबतुल्लाह पर हाथियों की लश्कर कशी को देख सकता है, जिसकी गवाही खुद खुदाए पाक ने कुरान पाक में दी है। तो क्या वो आपका नबी अपने इस होने वाले जिक्र को, अपने नवासों के जिक्र को, अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा के जिक्र को नहीं सुनता? आज जब रबीउल अव्वल का मतलब है पहली बहार, जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो फतवा लगाने वाली फैक्ट्रियां बामे अरूज पर पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि जब
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ लाए, उनकी विलादत हुई। उस वक्त मक्का में किसने जुलूस निकाला था, किसने जलसा किया था, किसने यह चरागा किया था, किसने यह झंडे लगाए थे, किसने लंगर पकाया था, किसने लंगर खिलाया था? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। उनका फतवा जो फतवा लगाते हैं वो वाकई दुरुस्त करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, उस वक्त मक्का में आज जो काम हो रहे हैं वो उनमें से एक काम भी नहीं हुआ था। किसी ने कोई जश्न नहीं मनाया था, कोई चिरागा नहीं किया था, कोई झंडा नहीं लगाया था। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताया जाए, जिस वक्त मेरे नबी की आमद हुई उस वक्त मक्का में कितने मुसलमान थे, कितने आशिकान रसूल थे, कितने मुश्ताकान रसूल थे? 10,000 थे, 5,000 थे, 2,000 थे, चलो 100 थे, 5 थे, 10 थे। कहते उस वक्त तो मुसलमान तो कोई भी नहीं था, आशिक रसूल तो कोई नहीं था। तो वो सैयदा आमिना और हजरत अबू तालिब के अलावा, उन दोनों के अलावा सैयदा आमिना भी, उनके अलावा कोई आशिक रसूल न था, कोई मुसलमान न था। तो मैंने कहा कि आओ आपको मदीनातुर रसूल ले चलो। जब मदीना के लोगों को इल्म हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ आ रहे हैं, तो मदीना के लोग आपके इस्तकबाल के लिए मदीना से बाहर निकलकर रोजाना आपका रास्ता देखते। जब उन्हें कन्फर्म हुआ कि आज ताजदार मदीना, ताजदार खत्म नबूवत का काफिला पहुंचने वाला है, तो मदीने के लोग, मदीने के आशिकान रसूल, मदीना के सहाबा किराम मदीना से निकलकर अपना काम काज छोड़कर मदीना के बाहर आ गए और मदीना की बच्चियां दफे लेकर मदीना की गलियों में कतार अंदर कतार खड़ी हो गई। मदीना की खवातीन छतों पर चढ़ गई। जब काफिला नबूवत नजर आया तो पूरी गलियां, पूरे मोहल्ले, मदीना के बाजार गूंज उठे, मरहबा आमदे मुस्तफा, मरहबा आमदे मुस्तफा। तो मैंने कहा कि देख लो, फर्क ये है, मक्का में कोई आशिक रसूल नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। आज मदीना में उशाकान रसूल का काफिला ज़ौक़ शौक़ प्यार मोहब्बत के साथ मेरे हजूर का जश्न मना रहे हैं। जहां जहां आशिक रसूल होगा वो नबी की आमद का जश्न मनाएगा। जिस जगह आशिक रसूल नहीं होगा तो फिर वहां पे कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं कि ये झंडे जब आमद रसूल हुई, कहते हैं कि जश्न किसने मनाया? तो मैंने कहा उस खुदा ने बनाया जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया। विलादत के मौका पर हजरत जिब्राइल को अल्लाह ताला ने 3 झंडे अता किए। एक मशरक की कोने में लगा, एक मगरब में लगा, एक बैतुल्लाह की छत पे लगा। आज हम अपनी दुकानों पर, अपने मकानों पर, अपने दफ्तरों पर, अपनी गाड़ियों पर जो आमद रसूल के झंडे लगाते हैं वो सुन्नत जिब्राइल है, सुन्नत खुदा है। और ये जो रोशनियां लगाते हैं
जिस वक्त आमद रसूल हुई तो ये सितारे ज़मीन के करीब आ गए, और इतने करीब आ गए आमना के लाल का घर रोशन और मुनव्वर हो गया, और पड़ी हुई सुई भी नजर आती थी। तुम इन चीजों को देखकर भी हमसे सवाल करते हो। और जब विलादत हुई तो मक्का में यहूदियों का सबसे बड़ा मुबल्लग सुबह चीखता चिल्लाता मक्का के बाजार में, मक्का के चौक में आके खड़ा हो गया। उसने कहा कि हम मारे गए, हम लुट गए। यहूदियों ने, जमा होने वाले लोगों ने पूछा कि हजरत साहब क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैंने किताबों में, अपनी किताबों में जो आखिरी नबी और जमा की आमद की निशानियां पड़ी थी, आज वो निशानियां पूरी हो गई हैं। आज मुझे बताया जाए कि मक्का में किस किस घर में बेटे पैदा हुए हैं। तो लोगों ने कहा कि हमें तो इल्म नहीं, मक्का में तो आज कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। उसी मजमा में एक शख्स ने कहा कि मक्का में आज एक यतीम बच्चा पैदा हुआ। हजरत अब्दुल्ला के घर एक यतीम बच्चा पैदा हुआ। वो यतीम नहीं था, वो यतीमों का सरदार था, उनका माँ बाप मल्ला था, उनका पालनहार था। जब उस मुबल्लग ने कहा कि मुझे हजरत अब्दुल्ला के घर ले चलो, जब वो बीबी आमना के घर पहुंचा, उसने नूरानी बच्चे को देखा तो बीबी आमना से फरमाइश की, दरखास्त की, इस्तदा की कि मुझे इस बच्चे की कमर मुबारक से कपड़ा हटाकर दिखाया जाए। जब बीबी आमना ने कमर से कपड़ा हटाया तो देखा कि दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। तो वो यहूदी मुबल्लग तड़प उठा, कहने लगा कि यहूदियों, आज से तुम्हारी सरदारी खत्म हो गई, आज से नबूवत बनु हाशिम के पास चली गई, कबीला कुरैश के पास चली गई। क्योंकि मैं चाहे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे कहो तो मैं इस मौजू पे बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने बात अपनी ख़त्म करनी है। और एक आखिरी शेर, अकीदे का शेर। मुल्ला आख्या फरिश्तियानू, मुल्ला आख्या फरिश्तियानू जन्नत विच मेरा प्लाट है। मुल्ला आख्या फरिश्तियानू जन्नत विच मेरा प्लाट है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ते रब 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 करके किता अपने नाम लाटे। फरिश्तिया ने मारे तप मुल्ला नू ते आख्या चट उड़ जा, चट उड़ जा, चट उड़ जा, चट उड़ जा दोज़ख में। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तेरा 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 इश्क मुस्तफा वाला टोकन शाट 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 शाट। जीते रहे सुभान अल्लाह।